हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here is the science and technology. There is a most important here discussion here. The Guptas and their successor. There is a most important science and technology. On the idea of the progress of science and technology in the Gupta period can be had from the important text written on this subject during the period. The most is a notable among them as the astronomical as a text called is a Aryabhattam written by the Aryabhatta in the 5th century. Aryabhattams they written by the Aryabhat of the 5th century. Aryabhat was the astronomers and mathematicians, and he formed to first time suggests that the earth is a rotate on its axis and the revolves around to the sun and the causing tempests. There is the most important theory given here, and he was the first to invent the zero and the use of the decimal system. The another scholar is a Brahma Mihara. There is a most important here, Brahma Mihir. Brahma Mihir at the end of the 6th centuries was a great astronomer who has written to number of books on the astronomy, and his work of Panch Siddhant. Panch Siddhantaka is most important here and the deal with the 5 astronomical system. The Brahma Gupta as well as known to this the mathematician also live in the Gupta period. There is a most important here. Here the methodologies also show the technical advancement in the Gupta time. There is a browsing image of the Buddha produced on the considerable scale in the period are an example of the advanced technology. There are 23 feet height iron pillar at the Merholi in the Delhi to be speak the volume of the iron technology and prevalent there is a Gupta period. Standing in the open, these pillars as not to be gathered rusted even after the 50th century. There is a most important here, and the wonderful painting of the Ajanta is still intact of the indicate is as the other thing. The arts of the making color during this period there is a most important. The important is a Mehroli in the Delhi. There speak on all the history of pillar. There is a 50th century. There is a very long time. There is not crust and gathering here, and the 50th century after. There is a most important. Important also is Ajanta still the intact indicate beside other things art and making of color during this period. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आया है विज्ञान तथा तकनीक। देखिए विज्ञान और तकनीक का युग सिर्फ हमारा नहीं है। विज्ञान और तकनीक का कहते 5वीं शताब्दी में भी थी, तो कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उस समय बहुत चीज़ें ऐसी थी जो साइंस को जो है मात दे रही थी और बहुत चीज़ों की खोज भी हुई। कहते हैं उस समय गुप्ता का ही समय काल था, यानी गुप्त वंश के ही राजा इस समय जो है राज्य किया करते थे और उस समय साइंस कमज़ोर नहीं थी, साइंस भी काफ़ी जो है तरक्की कर रही थी। गुप्त काल में विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के बारे में जानकारी हमें इस काल में इस विषय से रचित ग्रंथों से भी हमें मिलती है। इन ग्रंथों में सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ जो था खगोलीय विज्ञान पर आधारित आर्यभट्टम। देखिए आर्यभट्ट में खगोलीय विज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताया था, जो कि आर्यभट्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। यानी 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टम ने साहब ने बात को साफ कर दिया था खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत। आर्यभट्ट एक जो है खगोलीय विज्ञान तथा गणितज्ञ थे। उन्होंने ही प्रथम बार यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। उन्होंने शून्य की खोज भी की थी तथा दशमलव प्रणाली का प्रयोग जो है प्रथम बार उसी समय किया गया था। एक अन्य विज्ञान जो है ब्रह्म मिहिर जो 6वीं शताब्दी के उत्तर महान खगोलीय शास्त्री थे, उन्होंने जो है खगोलीय विज्ञान पे कई पुस्तकें की रचना कर दी थी। उनकी रचना जो थे पंच सिद्धांत में जो है 5 प्रकार की खगोलीय पद्धति बताई गई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे गुप्त काल के अंतर्गत ही
रचित हुई थी। तो गुप्त काल के लिए जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी थी, चरम सीमा पर कह सकते हो कि थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सुविख्यात गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त गुप्त भी जो है गुप्ता कालीन के ही थे। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इतने महान महान विशेषज्ञ जो थे गुप्ता के काल के समय में विद्वान थे। गुप्त वंश में धातु विज्ञान में भी नई तकनीकी का आगमन हो गया था, यानी धातु के बारे में भी गुप्त वंश को सब कुछ नॉलेज था, और इसका कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इस युग में निर्मित महात्मा बुद्ध की तांबे की विशालकाय मूर्ति उन्नत तकनीक का एक सबसे बड़ा उदाहरण था, क्योंकि इतना बड़ा जो है बुद्ध का प्रतिमा बनाना बिना टेक्नोलॉजी का संभव ही नहीं था। महरौली स्थित लोह स्तंभ भी धातु के क्षेत्र में गुप्त वंश की विकसित तकनीक का सबसे बड़ा व्याख्या करती है। यानी जो है महरौली में स्थित लोह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि उनको जो है मिश्र धातु की पुण्य ज्ञान थी। कहते हैं लोह स्तंभ धातु के क्षेत्र में गुप्त वंश की विकसित तकनीक का सबसे बड़ी है, और खुले क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद भी 15 शताब्दी उपरांत भी इस स्तंभ में जंग नहीं लगी है। तो आप समझ सकते हो कि गुप्त टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितना जो है तरक्की कर रखा होगा। अजंता की गुफाओं में उकेरे गए पक्के रंग के चित्र रंगों के क्षेत्र में रंग बनाने की कला की व्याख्या भी करते हैं। अब देखिए उस समय के किया हुआ रंग आज तक विद्यमान है, तो आप समझ सकते हो कि उनकी जो है कितने टेक्नोलॉजी जो थी उस समय विकसित थी। हमारे टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि एक काम होता है दूसरे काम खराब हो जाता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है जिसका आप व्याख्या करना यहाँ संभव नहीं है। और व्याख्या करना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि इनकी साइंस टेक्नोलॉजी बहुत काफ़ी उत्कृष्ट थी। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप इसी तरह बने रहिए और तिरपान स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।